دوستو بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ صوفی اور یاسر کی شرارتیں۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھو گے تو مزہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب دوست ویڈیو پر لائک اور ایک کمنٹ لازمی کریں تاکہ ایسی لانگ ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ شکریہ۔ یاسر نے موبائل اٹھا کر حاجی صاحب کی دکان کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ چند بیلوں کے بعد دوسری جانب سے حاجی صاحب کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں حاجی صاحب کو اپنا تعارف کروانے لگا تھا، مگر کچھ سوچ کر میں نے اپنا لہجہ بدل کر سلام دعا لینے کے بعد سامنے جنید کو بلانے کا کہا۔ حاجی صاحب چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، جنید تو ابھی تک آیا نہیں ہے، اس کا سٹال بند ہے، شاید وہ آج چھٹی پر ہو۔ حاجی صاحب کی بات سن کر مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ جنید تو سیدھا دکان پر گیا تھا، پھر اس کا سٹال کیوں بند ہے؟ اگلے ہی لمحے اپنے اس خیال کو سر جھٹک دیا کہ جنید کو میں نے موبائل اور سم لینے کا کہا تھا، جس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اور میں نے جنید کے جانے کے 15-20 منٹ بعد ہی کال ملا دی تھی۔ میں نے حاجی صاحب کا شکریہ ادا کر کے کال بند کر دی۔ کال بند کر کے میں آنٹی لوگوں کو اپنے جانے کی اطلاع دینے کے لیے کمرے سے نکل کر آنٹی لوگوں کی جانب چلا گیا، تاکہ جا کر ان کو کوئی بہانہ سنا سکوں کہ میں ایک ہفتہ کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ آنٹی کے پاس جا کر میں نے نارمل باتوں کا آغاز کرنے کے بعد اچانک سے بات کا رخ چودھری صاحب اور شادی کی طرف موڑ کر کہا، آنٹی آج صبح مجھے چودھری صاحب کی کال آئی تھی۔ کل مجھے چودھری صاحب کے ساتھ لاہور جانا ہے، ان کے بھتیجے کی شادی لاہور میں ہے۔ انہوں نے اسپیشل تاکید کی ہے کہ تم نے میرے ساتھ شادی میں شرکت کرنی ہے۔ صوفی بھی وہاں موجود تھی۔ میری بات سنتے ہی آنٹی سے پہلے صوفی بولی، کتنے دنوں کے لیے؟ میں نے کہا، فی الحال تو چودھری صاحب نے ساتھ جانے کی بات کی ہے، ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے دن لگ جائیں گے۔ باقی ہے لگتا ہے جہاں تک مجھے شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے 4 سے 5 دن تو لازمی لگ جائیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر 4-5 دن کہا تھا تاکہ بعد میں صوفی کو کال کر کے مزید 2-3 دن رکنے کا بہانہ لگا دوں گا۔ اگر ابھی اسے 1 ہفتہ سے زائد رکنے کا کہتا تو صوفی نے ابھی اسی وقت آپے سے باہر ہو کر میرے گلے پڑ جانا تھا۔ اس بات کا اندازہ 4-5 دن کا بتانے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ 4-5 دن کا لفظ سنتے ہی صوفی پوری آنکھیں کھول کر بولی، کیا 4-5 دن؟ صوفی کی بات سن کر آنٹی بولی، تم اتنا کیوں حیران ہو رہی ہو؟ تمام لوگوں کی شادی 4-5 دن سے پہلے ختم نہیں ہوتی، وہ نہ پھر بڑے لوگ ہیں۔ آنٹی کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں نے کہا، جی بالکل اب صحیح کہہ رہی ہے، چودھری صاحب کے بھتیجے کی شادی ہے، اور جس طرح چودھری صاحب کا ہمارے علاقے میں اچھا خاصا نام ہے، اسی طرح چودھری صاحب کے بھائی کا بھی لاہور میں اچھا خاصا نام ہے۔ شادی میں بڑی بڑی سیاسی شخصیات نے شمولیت کرنی ہے۔ شادی کا فنکشن تو شاید پچھلے ہفتے سے شروع ہے، بس چودھری صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے لیٹ جا رہے ہیں، اس لیے 4-5 دن تو نارمل ہی سمجھی۔ میری بات سن کر صوفی مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے مجھے گھور کر کھڑی ہوئی اور جاؤ جی جاؤ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ صوفی کا رویہ دیکھ کر میں گہری سانس لے کر رہ گیا، جبکہ آنٹی میری لاچاری دیکھ کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، یاسر بیٹا تم چودھری صاحب کے ساتھ جانے کی تیاری کرو، اسے میں خود ہی سمجھا لوں گی۔ میں نے کہا، آنٹی اب تو جانتی ہیں چودھری صاحب کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، بلکہ صوفی لوگوں کو واپس لانے میں سب سے بڑا ہاتھ چودھری صاحب کا تھا، ان کی مدد اور تعاون سے ہی میں ان لوگوں تک پہنچ سکا تھا۔ اگر وہ خود مجھے ساتھ جانے کا کہتے تو مجھے کیا ضرورت پڑی دھکے سے ان کے ساتھ تیار ہونے کی؟ اب میں ان کو جواب تو نہیں دے سکتا، یہ ان کی محبت اور اپنائیت ہے کہ اپنی خوشی میں مجھے شریک کر رہے ہیں۔ میری سچی اور مضبوط دلیلیں سن کر آنٹی بولے، بالکل بیٹا تمہیں ہر حال میں جانا چاہیے، یہ تو پاگل ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ کب جانا ہے تم نے؟ آنٹی کی بات سن کر میں نے کہا، کل صبح 10 بجے چودھری صاحب کے پاس پہنچنا ہے۔ آنٹی دعائیہ کلمات کہتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اسے سمجھ لوں گی۔ آنٹی کی طرف تسلی بخش جواب سننے کے بعد میں چاہتا تو ابھی ان کو الوداع کہہ کر وہاں سے چلا جاتا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر صوفی کو منانے کے لیے آنٹی سے اجازت لیتے ہوئے بولا، آنٹی میں ایک دفعہ خود جا کر صوفی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ جائے۔ آنٹی مسکراتے ہوئے بولے، تمہارے ان بیچوں نے اسے سر پر پڑایا ہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی طرح روٹھ جاتی ہے۔ میں مسکراتے ہوئے آنٹی کے پاس سے کر صوفی کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ماہی اور گل زیب پہلے ہی مجھے نظر نہیں آئی تھی، شاید وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی مشغلے میں مصروف تھیں۔
कमरे में दाखिल हुआ तो सूफी तकिया को बाजों में भींच कर बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उफ सका थी। लिटने का अंदाज देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। साथ ही मेरे हाथ पीछे की जानिब जाकर पूरा दरवाज़ा बंद करने लगे। अब सूफी को मेरी आमद की खबर हुई थी या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मेरे अंदर दाखिल होने से लेकर दरवाज़ा बंद होने तक सूफी अपनी जगह से टस से मिस नहीं हुई थी। सूफी की पुतली कमर और कमर पर बेतरतीब फैले हुए इसके रेशमी सिल्की लंबे बाल, कमर से नीचे बाल, कमर उफ जिसकी नरमी को वहीं खड़े मेरे हाथ महसूस करने लगे थे। मेरी आंखें जो हुसैन दिलकश जाज़िबत को पूरी तरह गरमा देने वाला मंजर देख रही थी। अगर सूफी की जगह कोई और लड़की होती तो इस हुसैन नज़ारे पर पहली नज़र पड़ते ही कुछ हो जाना था। इसलिए अभी भी इस हुसैन मंजर को देखकर पागल जरूर हो गया था। इस पर प्यार आ रहा था और ये शिद्दत मुझे पागल कर रही थी। मैं बेकरारी में दोनों हाथों की मुट्ठियों को जोर से भींचकर हाथ खोल ही कर हाथों को आपस में मिलते हुए दबे पांव चलता हुआ सूफी के पैरों की जानिब जाकर खड़ा हुआ। लम्हा भर के लिए करीब से इसके वजूद पर पैरों से सर तक नजर डालकर आगे को झुका और सूफी के घुटनों के दोनों अतराफ हाथ रखकर घोड़े की शक्ल में ऐसी मोहतात अंदाज में बैठ पर चढ़ने लगा जैसे मुझे खदशा हो कि मेरी दर्रा सी आहट करने पर सूफी की आंख न खिल जाए। जबकि अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि सूफी मेरी आमद से बेखबर हो। मैं इसी पोजीशन में सूफी के जिस्म के अतराफ में हाथों और घुटनों के बिल चलता हुआ सूफी के ऊपर सवार हो चुका था। सवार होने के बावजूद इसे बेखबर देखकर मैंने थोड़ा झुककर सूफी के दाएं कान के करीब होंठ ले जाकर लाड भरे अंदाज में कहा, मेरा शौना निराज हो गया है। मेरी सांसों की गर्माहट ने सूफी के जिस्म में जुम्बिश पैदा कर दी। सूफी कान पर हाथ रखकर सर को दाएं जानिब घुमाकर सी करते हुए बोली, अब जाओ अपने चौधरी साहिब के पास, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं मुस्कुरा कर बोला, कान से हाथ हटाओ फिर बताता हूँ क्या लेने आया हूँ। सूफी तकिए में चेहरा छुपाकर दबी आवाज में बोली, यासिर प्लीज तंग न करो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा, मेरी बात तो सुन सकती हो ना? सूफी इसी अंदाज में दबी आवाज में बोली, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। ओ मैंने सूफी के पीछे दबाव बढ़ाते हुए कहा, ओके फिर मैं यहाँ ही लेट जाता हूँ। सूफी फुर्ती से घूमते हुए बोली, जाते हो या नहीं? ये कहते हुए सूफी फुर्ती से घूमकर सीधी हो गई। इसके सीधे होते ही पोजीशन बदल गई। मैं इसी पोजीशन में सूफी के ऊपर सवार था, मगर अब मेरा वजन सूफी के जिस्म पर नहीं था, मैं बस इस पर छांव किए हुए था। सूफी ने सीधे होते ही हाथों का जोर लगाते हुए कहा, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, और तुम मेरे ऊपर सवार हो रहे हो। हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो मैं अम्मी को आवाज देने लगी हूँ। मैं सीने के जोर से सूफी के हाथों का जोर नाकाम बनाते हुए बोला, तुमने जरूर करनी है, मैं खुद आंटी को आवाज दे देता हूँ कि आकर देखें आपकी लाडली बेटी कैसे मुझ पर जुल्म कर रही है। सूफी मुंह बनाते हुए बोली, पहली और हुई शक्ल देखी है मजलूम की, ऐसी शक्ल वाली दो चार और मजलूम आते तो बस ये शहर मजलूमों से भर जाएगा। सूफी जितना गुस्सा दुखाने की कोशिश कर रही थी, मुझे इस पर इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि वो थी मेरी प्यारी सूफी। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, कोई भी अपने शौहर को ऐसे कहती है? सूफी मेरे सीने पर दोनों हाथ रखकर मुसलसल जोर लगाते हुए बोली, मैं नहीं तुम्हारी बीवी। जहां जा रहे हो तो अपने चौधरी साहिब को कहना तुम्हें वहां से बीवी भी ढूंढ देगा। वैसे भी वहां एक से बढ़कर एक हुसैन लड़कियां आई होंगी। मैं अपनी पोजीशन बनाए हुए बोला, पक्की बात है कि मैं वहां से लड़की ढूंढ लूं? सूफी लापरवाही से बोली, हाँ जी पक्की बात है। मैंने कहा, देख लो। सूफी बोली, देख लिया? मैंने कहा, सोच लो। सूफी इसी स्टाइल से बोली, सोच लिया, अब हटो मेरे ऊपर से। मैं शौखी से बोला, अब अपनी बात पर कायम रहना। सूफी बोली, हाँ जी कायम रहूंगी। मैं गहरी सांस लेते हुए झटके से बैठ पर टांगे लटका कर उसके पहलू में बैठ गया और उसकी जानिब देखकर संजीदा अंदाज मैं बोला, ओके जैसे तुम खुश। अगर मुझसे जान छोवा कर तुम खुश तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। शायद अब जब दोबारा हमारी मुलाकात हो तो मेरे साथ एक हुसैन जवान चंचल शौक हसीना भी हो। अपना ख्याल रखना। मैंने इतनी जानदार एक्टिंग करते हुए सूफी को इसकी फरमाइश पूरी करने का यकीन दिला दिया था कि अभी मैं गुड बाई कहकर उठने के लिए थोड़ा सा ऊपर हुआ ही था कि अचानक सूफी ने अपनी जगह से फुर्ती से उठती हुई भारतीय शेरनी की तरह मुझ पर झपटा। सूफी ने मेरे पीछे से मेरी कमर में बाजू डालकर मेरे पेट पर हाथ बांधते हुए बेड पर झटके से मुझे वापस खींचकर अपने साथ ही ले गई।
सूफी मेरे और मैं सूफी के बाजों में जकड़ा हुआ कमर के बिल सूफी के ऊपर था। मैं चाहता तो एक झटके से सूफी के बाजुओं की गिरफ्त से निकल जाता, मगर मेरा तो सारा ड्रामा ही सूफी को मनाने के लिए था। मैं फर्जी मुजाहमत करते हुए दाएं बाएं कमर को लहरा कर सूफी के बाजुओं की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे, अब रोक क्यों रही हो। सूफी जब मुझे अलिफ किसती हुए देखा तो उसने इसी अंदाज में मेरे नीचे लेटे हुए अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाकर मेरी रानों के अतराफ में टांगों से मुझे पूरी तरह काबू शिकंजा किस कर लिया और साथ ही मेरे कंधे के नीचे दांतों में जिम कर काटते हुए बोली, सब्र करो, अभी भेजती हो तुम्हें। शोखा जी, अब जरा हल कर तो दिखाओ। ओ कंधे पर सूफी के दांतों को महसूस करके मौत दिखाते हुए बोला, छोड़ो यार, खुद ही तो मुझसे जान छुड़वाने की बातें कर रही थी, अब मुझे जब ही डाल लिया है। सूफी बोली, ये खुशफहमी अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाली हूँ। मेरे होते हुए तुम किसी और की जानिब आंख भी नहीं उठाकर देख सकते, और जनाब चंचल है, शोख चंचल हसीना लेने वाली। सूफी के अंदर न जाने कौन से पहलवान की रूह नाजिल हो गई थी, जो पहलवानों की तरह मुझे बाजुओं और टांगों के शिकंजे में जकड़े पूरी तरह काबू कर रही थी। वैसे भी जिस अंदाज में सूफी ने मुझे किया हुआ था, फिर भी मैं फर्जी नखरा दिखाते हुए बोला, जब देखो छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाकर बैठ जाती हो। हर बंदा अपनी मजबूरी को भी देख ले कि किस मजबूरी के तहत बात कर रहा है। बजाय मेरी बात को समझने के उल्टा तुम मौत बनाकर कमरे में भाग जाती हो। सूफी मेरे कंधे को दांतों की पकड़ से आजाद करते हुए बोली, सारी दुनिया की मजबूरियों का बोझ तुम्हारे सर पर ही सवार है ना। चौधरी साहब किसी और को भी तो साथ लेकर जा सकते हैं, तुम्हारा उनके साथ जाना जरूरी तो नहीं। मैंने कहा, ये उनकी मेरे साथ मोहब्बत है कि वो मुझे अपनी खुशी में शरीक कर रहे हैं, जिसे तुम नहीं समझ सकती, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि चौधरी साहब के मुझ पर कितने एहसान हैं। तुम जो सही सलामत आज यहाँ पर हो, ये भी चौधरी साहब की वजह से हो। अगर उनका मेरी पीठ पर हाथ न होता तो न जाने क्या कुछ हो जाता। अगर मेरे लिए वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए स्पेशल मुझे कॉल करके साथ चलने का कहा है, तो क्या मैं इतना कम ज़र्फ हूं कि उनको मुंह भर कर जवाब दे देता। मेरी बातें सुनकर शायद सूफी को अपने बेजा मौत बनाने का एहसास हो गया था, इसलिए वो मेरी बात का जवाब देने आ फिर इस मौजू को तवील करने की बजाय मौजू हिट कर बोली, अच्छा तो चौधरी साहब जनाब तन पर सिर्फ हाथ है, और सिर्फ अकेला हाथ हुए की वजह से जनाब साहब उनकी कोई बात नहीं टाल सकते। मैं बड़े गौर से सूफी की बात सुन रहा था कि शायद सूफी भर से कोई तंज करने लगी है, मगर अगले ही लम्हे सूफी मेरी कान के करीब होंठ करके रोमांटिक अंदाज में बोली, और मैं जो पूरी की पूरी तुम्हारी कमर के साथ चिपकी हुई हूँ, मेरी तो तुम एक भी बात नहीं मानते। एक लम्हा में सूफी के होंठों की हरारत मेरे कान के जरिए मेरे दिमाग तक पहुंच गई। एकदम उसका मीठा मोहब्बत भरा अंदाज देखकर मैं शोख भरे अंदाज में बोला, पहले तो नहीं, अब तुम मेरी कमर के साथ चिपकी हो। ये कहकर मैंने अपने वजूद को नीचे की जानिब धक्का लगाकर सूफी पर दबाव बढ़ा दिया। वजन पड़ते ही सूफी तकलीफ का इजहार करते हुए बोली, मेरा सांस बंद हो गया। यासिर के बच्चे पीछे हटो, मैं हंसते हुए अपने पाँव मैट्रिस पर रखकर मजीद पीछे को जोर लगाने लगा। सूफी कराहते हुए बोली, यासिर तुम्हारी किस्म, मेरा सांस रुक रहा है, प्लीज न करो। मैं अपनी बात मनवाने के लिए सूफी को ब्लैकमेल करते हुए बोला, अब बताओ तुम्हारी बात मानता हूं कि नहीं। सूफी उई कहते हुए बोली, मानता हूं तो हूं। मैं इसी पोजीशन में रहते हुए अपनी दूसरी बात मनवाते हुए बोला, अब मेरी किसी बात पर यूं मौत बनाओगी। सूफी नफी में सर दाएं बाएं मार कर उई कहते हुए बोली, नहीं बनाती नहीं बनाती। मैं हंसते हुए बोला, अब बनाया तो। सूफी बोली, फिर जो मर्जी कर लेना। अपनी बात मनवाने के साथ ही मैंने पैरों को ढीला छोड़कर सूफी के ऊपर से अपने वजूद का दबाव कम कर दिया। दबाव कम होते ही सूफी ने गहरी सांस लेते हुए मेरे वजूद को टांगों और बाजुओं से आजाद कर दिया। चंद लम्हे तेज तेज सांसें लेने के बाद अचानक से सूफी ने मेरी कमर के दोनों अतराफ गुदगुदी शुरू कर दी। सूफी को मेरी कमजोरी का पता था कि गुदगुदी मेरी जान लेती है। जैसे ही सूफी ने गुदगुदी शुरू की, मैं पूरे जोर से चिंघाड़ते हुए बिजली की सी तेजी से घूमकर सूफी के ऊपर से पलट गया और बेड के किनारे पर जा पहुंचा। मगर सूफी मेरी कमर का पीछा करते हुए, अब भाग कहाँ रहे हो, ये कहते हुए वो मेरे साथ ही घूमकर मेरे पीछे आ गई। सूफी ने फिर से मेरी बगलों में गुदगुदी शुरू कर दी। मैं मछली की तरह तड़पते हुए एक बार फिर से ऊंची आवाज में चीखते हुए सूफी से जान छुड़वा कर पलटते हुए धड़ाम से बेड से नीचे जा गिरा।
इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और आंटी घबराए हुए अंदर दाखिल होती हुई मुझे ज़मीन पर गिरा देखकर सीने पर हाथ रखकर बोले, हाय हाय मैं मर गई। एक तरफ मैं नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था, दूसरी जानिब सूफी के बिखरे बाल, कपड़े बेतरतीब। आंटी शायद मेरी चीख सुनकर भाग कर आई थी, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, वरना आंटी कभी भी यूं कमरे में नहीं आ सकती थी। यूं अचानक से आंटी को देखकर सूफी का तो जो हाल था उसके साथ में भी बोधुला गया था, मगर अगले ही लम्हे में खुद पर कंट्रोल करते हुए जानबूझकर कमर पर हाथ रखकर मर गया। कहने लग गया। आंटी दौड़ते हुए मेरे करीब आकर नीचे बैठती हुई बोले, यासिर क्या हुआ तुम्हें? मैं एक हाथ कमर पर रखकर उठकर बैठते हुए सूफी की जानिब इशारा करते हुए बोला, इसने मुझे धक्का दिया है। मेरा स्टाइल ऐसा था जैसे कोई मासूम बच्चा किसी से मार खाने के बाद अपनी माँ को शिकायत लगाता है कि फलां ने मुझे मारा है। सूफी पहले ही घबराहट का शिकार थी। एक तो मेरे नीचे गिरने की इसे परेशानी, दूसरा आंटी की बरवक्त आमद ने इसे मजीद परेशान कर दिया था, तीसरा मैंने इसका नाम ले दिया था कि इसने मुझे नीचे गिराया है। आंटी सूफी को झूरते हुए बोले, लगता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पागल खाने में दाखिल करवाती हूँ। ये कहकर आंटी मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाने की कोशिश करने लगे। हालांकि मुझे रत्ती बराबर भी चोट नहीं लगी थी, मगर आंटी के सामने खुद को मजलूम साबित करने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं कमर पर हाथ रखे तकलीफ का इजहार करते हुए लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। आंटी मेरा बाजू पकड़े मुझे सोफे की जानिब ले जाती हुई सूफी को किया जाने वाली नजरों से देख रही थी। दूसरी जानिब सूफी को अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो रहा था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वाकई चोट लग गई है। इसलिए वो शर्मिंदा होकर आंटी की बातें सुनने के साथ साथ परेशान हाल मेरी जानिब देखे जा रही थी। सूफी की शक्ल देखकर मेरी हंसी बाहर आने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं पूरी तरह संजीदगी इख्तियार किए हुए था, क्योंकि मेरी जरा सी भी हंसी निकल जाती तो सूफी ने अपने बाल नोचने शुरू कर देने थे और आंटी के सामने ही मेरी क्लास लगा देनी थी। इसलिए मैं माहौल को संजीदा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने जब देखा कि आंटी मुझे सोफे पर बिठाना चाहती हैं, तो मैं तकलीफ का इजहार करते हुए बोला, आंटी मुझे बेड पर लिटा दें, मुझसे सोफे पर नहीं बैठा जा रहा। मेरी बात सुनकर आंटी सोफे की बजाय मुझे बेड पर उठाती हुई सूफी की जानिब देखकर खफगी भरे अंदाज में बोले, अब वहां बैठी मुन क्या देख रही हो? यासिर के सर के नीचे तकिया रखो। सूफी बेचारी खुद को कसूरवार समझकर ना रो सकती थी, ना ही अपनी सफाई में कुछ कह सकती थी, इसलिए वो जल्दी तकिया पकड़कर मेरे सर के नीचे रखने लगी। इस दौरान सूफी बिल्कुल मेरे करीब थी। इसके जिस्म से उठती खुशबू मेरे नथनों में घुल रही थी। मैं लेटकर आंटी का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, अब ठीक है। आंटी बोले, बेटा अगर ज्यादा चोट लगी तो डॉक्टर के पास चली। मैं नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं आंटी जी, अभी कुछ देर लेटने के बाद ठीक हो जाऊंगा। आंटी सूफी की जानिब देखकर बोले, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। बतम्स की भी कोई हद होती है। वो तुम्हें मनाने के लिए आया था और तुम उसे धक्के देने पर उतर आई हो। मैं आंटी को चुप करवाते हुए बोला, आंटी चुप रहीं प्लीज, इसे कुछ मत कहीं। आंटी शदीद गुस्से का इजहार करते हुए बोले, ऐसे कुछ न कहूं, मेरा तो दिल कर रहा है कि इसका मुंह तोड़ दूं। तुम्हारी उन्हीं बातों की वजह से ये तुम्हारे सर पर सवार होती जा रही है। जितने ज्यादा तुम उसके चौंचले करते हो ये इतनी ही बदतमीज होती जा रही है। आंटी के तेवर देखकर मैं कमर पर हाथ रखकर तकलीफ का इजहार करते हुए बोला, हाय 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 मेरी हाय। सुनकर आंटी सूफी की जानिब से तवज्जो हटाकर मेरी जानिब मुतवज्जे होकर दुख भरे अंदाज में बोले, बेटा मैं तो कहती हूँ अस्पताल चलते हैं, एक दफा डॉक्टर से चेकअप करवा लो। उनमें साथ ही नॉर्मल होते हुए बोला, नहीं आंटी जी, बस हल्की सी तकलीफ है, कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कहकर मैं हाथ जोड़ते हुए बोला, आंटी प्लीज अपने सूफी को कुछ नहीं कहना। वो आंटी सूफी की जानिब देखकर गुस्से से बोले, देख लो और शर्म भी कर लो। मैं जल्दी से बोला, आंटी प्लीज। आंटी मेरी जानिब देखकर गहरी सांस लेते हुए मुस्करा कर बोले, ओकी कुछ नहीं कहती इसे, मगर तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कोई जरूरत नहीं है इसके चौंचले करने की। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा नहीं करता, अब प्लीज कूल डाउन हो जाए। सूफी बेचारी सर झुकाकर परेशान बैठी हुई थी। इसके आंसुओं ने इसके गाल पर लकीरें खींच दी थीं। सूफी की हालत मुझे देखी नहीं जा रही थी, मगर आंटी के सामने अब मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैंने सूफी को तंग करने के लिए चोट लगने का ड्रामा किया है। आंटी सूफी की तरफ देखकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए थोड़े तल्ख लहजे में बोले,
बाद में रोना धोना कर लेना, जाओ जाकर यासिर के लिए दूध गर्म करके लाओ। सूफी खामोशी से सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। दरअसल आंटी की तरह सूफी को भी इस बात का यकीन हो गया था कि मुझे चोट लग गई है, क्योंकि मेरे गिरने की अच्छी खासी आवाज आई थी, जबकि मेरी कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी थी कि ऐसी मामूली ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई से भी गिर जाता तो मुझे चोट नहीं लगती थी। इसलिए बेचारी सूफी खामोशी से आंटी की झड़कें सुनती जा रही थी। सूफी के जाने के बाद आंटी बोले, मुझे पता है सूफी के लिए ही तुम्हें धक्का दिया था, इसको बचाने के लिए अब कह रहे हो कि मेरा पांव फिसल गया था। तुम कौन सा पहाड़ पर चढ़ रहे थे या दीवार पर चल रहे थे जो तुम्हारा पांव फिसल गया था? मैं मुस्कुराते हुए बोला, आंटी जो भी है बस अपने सूफी को कुछ नहीं कहना। आप मेरे साथ वादा करें कि आप इसे कुछ नहीं कहेंगी। आंटी मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए दुआया कलमात कहकर बोले, अच्छा कुछ नहीं कहती ओ। मैंने कहा, ऐसे नहीं, मेरे साथ वादी करें ओ। आंटी हंसते हुए बोले, अच्छा बाबा वादी कुछ नहीं कहती ओ। मैं मुस्कुराकर आंटी का हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, थैंक्स आंटी जी। आंटी मुस्कुराते हुए मुझे दुआएं देते हुए बोले, तुम्हें देखकर मैं ऊपर वाले का जितना भी शुक्र अदा करूं इतना ही कम है कि इसने मुझे तुम्हारी शक्ल में बेटे जैसा दामाद दिया है। आंटी की बात सुनकर मैं खफगी का इजहार करते हुए बोला, दामाद नहीं सिर्फ बेटा। आंटी मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल बिल्कुल, तुम बेटी से भी बढ़कर हो। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे बेटा नहीं दिया था कि इसने तुम्हें मेरा बेटा बना दिया था। तुम जैसा शुभ किस्मत वाली लड़की को मिलता है और मेरी बेटी है तुम्हारी कदर नहीं करती ओ। मैं मुस्कुराते हुए बोला, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं। सूफी जितना मुझे प्यार करती है, जानती है मेरी इज्जत करती है, शायद दुनिया की कोई दूसरी लड़की इतना ना कर पाती ओ। आंटी बोले, वो तो मुझे नजर आ रहा है कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। मैं हंसते हुए बोला, आंटी अब खामखा में इस बेचारी पर गुस्सा हो रही है। इसके रूठने और मेरे साथ लड़ने में भी इसकी मोहब्बत शामिल है। वो मुझे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहती, इसलिए तो मेरे जाने पर रूठ कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इतने में सूफी ट्रे में जुग और गिलास रखे कमरे में दाखिल हुई। सूफी का गुलाब जैसा चेहरा मुरझाया हुआ था। सूफी को देखकर मैं खामोश हो गया। आंटी ने सूफी के हाथ से ट्रे पकड़ के साइड टेबल पर रखते हुए सूफी की जानिब देखकर कहा, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यासिर को उठाकर टेक लगाओ, मैं गिलास में दूध डाल लूं। सूफी जल्दी से मेरी जानिब बढ़ी और मेरी गर्दन के नीचे बाजू डालकर मुझे ऊपर उठाने लगी। इसको यूं करीब से देखकर मुझे शरारत सूझी। मैंने कुन अखियों से पहले आंटी को देखा जो सूफी के पीछे अपना ध्यान जुग उठाकर गिलास में दूध उंडेल रही थी। तो मौका गनीमत जानकर मैंने फुल एक्टिंग करते हुए कराहते हुए ओ आह एक करके ऊपर उठने की कोशिश में सूफी की कमर पर हाथ रखकर झटके से इसे अपनी जानिब खींचा। सूफी की पोजीशन ही कुछ ऐसी थी कि बेचारी अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और मेरे झटका देने से बजाय उठने के वो खुद के बिल मेरे सीने पर गिर पड़ी। मुझे इस बात का पहले ही यकीन था कि जैसे ही सूफी मेरे ऊपर गिरेगी इसी लम्हे आंटी ने चौंक कर हमारी जानिब मुतवज्जे हो जाना है। इसलिए मैंने सूफी की कमर को झटका देते ही इसकी कमर से हाथ हटा लिया था ताकि आंटी को ये ना लगे कि मैंने सूफी की कमर पर हाथ रखा हुआ है। जैसे ही सूफी ई करते हुए मेरे सीने पर गिरती में लेट गया, अगले ही लम्हे आंटी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, हाय हाय क्या करूं इस लड़की का? तुम्हें इसे उठाने का कहा था, इसके साथ जपयाहे डालने का नहीं कहा था। सूफी जल्दी से उठने लगी तो मैंने सरगोशी में कहा, लेटी रहूं, कितना सुकून मिल रहा है। मेरी बात सुनकर सूफी मेरे ऊपर से उठते वक्त आंटी की बात का जवाब देने की बजाय मेरी जानिब मशकूक अंदाज में देखने लगी। इससे पहले कि सूफी कुछ बोलती आंटी सूफी को दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोले, ये पकड़ो, किसी काम की नहीं हो तुम। आंटी सूफी को गिलास पकड़ाकर मेरी जानिब बढ़ते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हें उठा देती हूँ, इस लड़की को तो पता लगेगा। मैं उठकर बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गया। आंटी ने जल्दी से मेरी कमर के पीछे तकिया रख दिया। तकिया रख कर आंटी सूफी की जानिब हाथ बढ़ाकर बोले, उधर 2 गिलास। सूफी मेरी जानिब मशकूक अंदाज में देखते हुए पहली बार जबान खोलते हुए बोली, अब जरा साइड हो जाए, मैं खुद पिलाती हूँ, लगता कुछ ज्यादा ही चोट लग गई थी। सूफी की देखने का अंदाज और उसकी बात सुनकर मेरी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजा दिया कि ले भाई काका तैयार हो जा, जितना ड्रामा करना था कर लिया, अब ड्रामे का एंड होने वाला है।